السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام JNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کی مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے DNA، کیٹل مارکیٹ اور چین کے پہلے تجارتی خلائی جہاز کی سائٹ لانچنگ سمیت مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ اس سال چین پریفیکچر وسیع شہری معائنے کے لیے تیار ہے۔ چین پریفیکچر کی سطح سے اوپر کے تمام شہروں میں 297 بلدیات شامل ہوں گے۔ ان میں سے 204 نے تفصیلی منصوبے تیار، جبکہ 115 نے متعلقہ کام شروع کر دیا۔ اس سال چین پریفیکچر کی سطح سے اوپر کے تمام شہروں کا احاطہ کرتے ہوئے ایک وسیع شہری معائنے کے لیے تیار ہے، جس میں کل 297 بلدیات شامل ہوں گی۔ اب تک ان میں سے 236 اہم شہروں نے معائنے کے لیے گروپس تشکیل دے دیے ہیں۔ ان میں سے 204 نے تفصیلی منصوبے تیار کیے ہیں اور 115 نے متعلقہ کاموں کو انجام دینا شروع کر دیا ہے۔ معائنے کی مدت مارچ سے اگست تک 5 ماہ پر محیط ہے اور ستمبر کے آخر تک انسپیکشن رپورٹ وزارت ہاؤسنگ اور شہری دیہی ترقی کو پیش کی جائے گی۔ اس سال کے معائنے کا مقصد ان رہائشی خدشات کو ترجیح دینا ہے جو کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور شہری ترقی کو متاثر کرتے ہیں، جبکہ ان کمزوریوں کو بھی دور کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ہے جو شہروں کی مسابقت، صلاحیت اور پائیدار ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ چین کے پہلے تجارتی خلائی جہاز کی لانچ سائٹ جون تک فعال ہونے کی توقع ہے۔ لانچنگ سائٹ جنوبی چین کے صوبہ ہینان کے وینچانگ شہر میں قائم کی جا رہی ہے۔ لانچ پیڈ 1 کی تعمیر جولائی 2022 میں شروع ہوئی تھی۔ توقع ہے کہ چین کا پہلا تجارتی خلائی جہاز لانچ سائٹ جون تک جنوبی چین کے صوبے ہینان کے وینچانگ شہر میں لانچ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ لانچ پیڈ 1 کی تعمیر جولائی 2022 میں شروع ہوئی تھی اور سامان کی تنصیب کا مرحلہ 2023 کے آخر تک مکمل ہوا۔ چائنا اکیڈمی آف لانچ وہیکل ٹیکنالوجی کے تکنیکی اہلکار لانچ پیڈ 1 پر ہائیڈرولک، پیمائش اور کنٹرول اور الیکٹرو میکینیکل سسٹم کی مشترکہ ڈی بگنگ کر رہے ہیں۔ منصوبے کی تعمیر کی بروقت پیش رفت کو یقینی بنانے کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے 20 سے زائد تکنیکی ماہرین بھی لانچ سائٹ پر موجود ہیں جو ایڈجسٹمنٹ، آپٹیمائزیشن اور ڈی بگنگ سمیت متعدد بڑے عمل کو انجام دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لانچ پیڈ 1 لانگ مارچ 8 کیریئر راکٹوں کے لیے ایک وقف لانچ سٹیشن ہے جس میں 11 قسم کے آلات اور سہولیات جیسے فکسڈ سروس ٹاورز اور لانچ پیڈ شامل ہیں۔ اعلیٰ کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے مختصر وقت میں راکٹوں کی مسلسل لانچنگ کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے لانچ سائٹ کے ڈیزائن اور مصنوعات کے انتخابات میں تکنیکی اختراعات کا ایک سلسلہ اپنایا گیا ہے۔ تجارتی خلائی لانچ سائٹ کی بنیاد پر ہائنان راکٹ انڈسٹری چین، سیٹلائٹ انڈسٹری چین اور ڈیٹا چین پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے تجارتی خلائی صنعت کے کلسٹرز کی تشکیل میں تیزی لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کی جانب سے نئے قوانین کا اطلاق کر دیا گیا۔ اب نئی شہری عمارتیں 2025 تک نئے گرین بلڈنگ سٹینڈرڈز کے مطابق تعمیر کی جائیں گی۔ چین کے سب سے بڑے اقتصادی منصوبہ ساز نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کی جانب سے اس ماہ کے اوائل میں مشترکہ طور پر نافذ کیے گئے وزارتی قوانین کے تحت ملک بھر میں تمام نئی شہری عمارتیں 2025 تک نئے گرین بلڈنگ اسٹینڈرڈز کے مطابق تعمیر کی جائیں گی، جبکہ ہاؤسنگ کی تعمیر کے شعبے میں توانائی کے تحفظ اور کاربن میں کمی کے نظام کو مزید مکمل بنایا جائے گا۔ موجودہ عمارتوں میں توانائی کی بچت میں تزئین و آرائش کا ہدف 2023 کے مقابلے میں 200 ملین مربع میٹر سے زیادہ ہے۔ شہری عمارتوں میں قابل تجدید توانائی کی متبادل شرح کو 8% تک پہنچایا جانا ہے۔ ان اہداف کے حصول کے لیے حکام 12 اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کریں گے، جن میں جدید ٹیکنالوجی کی تحقیق اور ترقی میں تیزی لانا اور اس کے لیے پالیسی اور مالی معاونت میں اضافہ شامل ہے۔ NDRC کے مطابق سازگار حالات والے علاقوں جیسے شمالی چین میں بیجنگ، تیانجن، ہوبے کا علاقہ اور مشرقی چین میں یانگزی اور دریائی ڈیلٹا میں بڑے پیمانے پر انتہائی کم توانائی کی کھپت والی عمارتوں کی ترقی میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ کچھ سرکاری اداروں میں اس سلسلے میں ایک پائلٹ پروگرام نافذ کیا جائے گا۔ دیہی علاقوں میں کم کاربن تبدیلی کو فروغ دینے کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی، جس میں کوئلے کی کھپت کو کم کرنے کے لیے کسانوں کی رہنمائی کرنا اور انہیں مقامی حالات کی بنیاد پر بجلی، قدرتی گیس اور قابل تجدید توانائی کے استعمال کی ترغیب دینا شامل ہے۔ چین میں مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور 5G ٹرانسمیشن جیسی نئی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی چین میں روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔
सोजो हाई स्पीड रेलवे न्यू सिटी में बगैर पायलट की गाड़ियां अब मामूल बन गई हैं। मसनूई ज़हानत, बिग डेटा, 5G ट्रांसमिशन जैसी नई जदीद टेक्नोलॉजीज चीन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं, क्योंकि ये अब नक्लो हमल, मवासिलात और सेहत की देखभाल समेत कलीदी शोबों में खिदमत अंजाम दे रही हैं। सोजो हाई स्पीड रेलवे न्यू सिटी में बगैर पायलट की गाड़ियां अब मामूल बन गई हैं। मसलन जी होक्सियान ने ऑनलाइन सवारी की बुकिंग की और गाड़ी मुकर्ररा मकाम पर वक्त पर पहुंच गई। जी के चेहरे की शनाख्त की तस्दीक मुकम्मल करने के बाद 10 मिनट का सफ़र शुरू हुआ, जिसके दौरान गाड़ी अपने मरबूत रेडार और कैमरों की बदौलत खुदकार तरीके से मोड़, स्टॉप और रफ्तार को नेविगेट करती है और ट्रैफिक लाइट्स और दीगर गाड़ियों के फासले का भी ख्याल करती है। इन खिदमात के अलावा तकरीबन 600 स्मार्ट गाड़ियाँ 30 मुरब्बा किलोमीटर में 40 मुख्तलिफ खिदमात की अंजामदही के लिए मुख्तस हैं, जिनमें एक्सप्रेस डिलीवरी, फूड डिलीवरी सर्विसेज और कनेक्टिंग बसें शामिल हैं। गाड़ियों, सड़कों के बुनियादी ढांचे और क्लाउड कंप्यूटिंग के दरमियान हम आहंगी ने एक जामे स्मार्ट नकलो हमल का नेटवर्क तख्लीक किया है, जिसने ट्रैफिक के बहाव को तकरीबन 20% तक बेहतर बनाया है। सोजो शहर ने इस पेशरफ्त में कानूनी फ्रेमवर्क की फराहमी के लिए मुताल्लिका कानून साजी मुतारिफ करवाई है। फिलहाल सोजो हाई स्पीड रेलवे न्यू सिटी में 180 से ज्यादा कंपनीज हैं जो रेडार, पैमाइश और नक्शा साजी समेत 30 मुख्तलिफ शोबों का अहाता करती हैं। चीन रवां साल अपनी नई एनर्जी व्हीकल्स के शोबे की तरक्की को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। हुकाम को तवक्को है कि नए इक़दाम सारिफीन को अपनी पुरानी गाड़ियां तब्दील करने की तरगीब देंगे। चीन रवां साल अपनी नई एनर्जी व्हीकल्स के शोबे की तरक्की को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और हुक्काम को तवक्को है कि नए इक़दाम सारिफीन को अपनी पुरानी गाड़ियां तब्दील करने की तरगीब देंगे। नायब वज़ीर तिजारत शेन चेंपिंग ने कहा कि चीन की NEV की मार्केट में रसाई की शरह में सालाना इजाफे के साथ तिजारत के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और माली मदद में इजाफे, पॉलिसियों के इम्तजाज के नफाज और पुरानी गाड़ियों को नई गाड़ियों से तब्दील करने के लिए एक मुअस्सर मैकेनिज़्म कायम करने की कोशिशें इस साल तेज़ की जाएंगी। वजारत NEV की फरोख्त और तवानाई की बचत करने वाली गाड़ियों के तनासुब में मजीद इजाफे के लिए ऑटोमोबाइल डेटा के इश्तराक को फ़रोग देगी और ऑटोमोबाइल के पूरे लाइफ साइकिल के लिए एक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म कायम करेगी। इसके अलावा NEV के लिए इंश्योरेंस की शरहों में कमी पर गौर और स्क्रैप शुदा NEV पावर बैटरियों को रिसाइकिल करने के लिए मयारी प्रोटोकॉल को नाफिज करने पर भी गौर होगा। साथ ही वेस्ट बैटरी वसाइल के इस्तेमाल की मजमूई कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए रिसाइकलिंग फर्म्स की हौसला अफजाई करने पर भी गौर किया जाएगा। नायब वजीर बराए हाउसिंग और शहरी दही तरक्की ने ऐलान किया है कि रिहायशी आबादियों में पार्किंग और NEV चार्जिंग के लिए सरमायाकारी में इजाफा जारी रहेगा। नए घर खरीदने वालों को भी पार्किंग या गाड़ियों के लिए चार्जिंग की सहूलियात दी जाएंगी। हुक्काम के मुताबिक चीन पायदार नक्लो हमल की मुल्की अज़्म के मुताबिक नई तवानाई की गाड़ियों की बढ़ती हुई मकबूलियत को एडजस्ट करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को तेजी से तोसी दे रहा है। इस ज़िम्न में हाउसिंग और शहरी देही तरक्की की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी और रियासती कौंसिल के रियासती मिल्कियत वाले असासों की निगरानी और इंतजामी कमीशन के ओहदेदारों के माबैन मरबूत हिकमत अमली का भी इंकशाफ हुआ है। नायब वजीर बराए हाउसिंग और शहरी देही तरक्की ने ऐलान किया है कि वजारत रिहायशी आबादियों में पार्किंग और NEV चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचे की सरमायाकारी में इजाफा जारी रखेगी और नए घर खरीदने वालों को पार्किंग या गाड़ियों के लिए चार्जिंग की सहूलियात दी जाएंगी। इसके अलावा पुरानी इमारतों और रिहायशी इलाकों में तज़ीन व आराइश के उन मंसूबों को जारी रखा जाएगा जिसमें गुज़श्ता साल रिहायशी आबादियों में 8,50,000 पार्किंग मकामात का इजाफा किया गया और इस साल मजीद 50,000 पुराने रिहायशी इलाकों में इस मंसूबे को जारी रखा जाएगा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक वजारत ने इस सनत को मदद फराहम करने का वादा किया है और इसे चीन की आला मयार की पैदावारी क़ुव्वतों के एक अहम जुज़्व के तौर पर पेश किया है। स्टेट कौंसिल के सरकारी असासों की निगरानी और इंतजामी कमीशन के हुक्काम के मुताबिक मुल्क के मरकजी ज़ेर इंतजाम ऑटोमेकर्स ने गुज़श्ता साल NEV में तकरीबन 5 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी की। नॉनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन की मसनूई ज़हानत में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। नॉनजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन ने DNA नैनो डिवाइस तैयार कर ली। डिवाइस से अब माहिरीन पेचीदा DNA नैनो स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारी जिंदगियों खासतौर पर सेहत के शोबों में गहरे असरात और इतलाक में तेजी के पेश नज़र नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन ने इस समत में बड़ी पेशरफ्त की है, जिसमें एक DNA नैनो डिवाइस तैयार की गई है जिसमें तकनीकी माहिरीन अब पेचीदा DNA नैनो स्ट्रक्चर्स को खुद ब खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, बेहतरीन मंसूबों को फिल्टर कर सकते हैं और उनकी फिजिबिलिटी की तस्दीक कर सकते हैं। स्कूल ऑफ मटेरियल्स साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रोफेसर वांग लियांग हुई का कहना है कि इस आले का कद्र सिर्फ 20 नैनोमीटर है, जो इंसानी बालों की मोटाई का 10,000वां हिस्सा है। ये ज़हीन DNA नैनो डिवाइस जिस्म में दाखिल होने पर ऑटो लाइसेंस से पहले खून के लोथड़ों को निशाना बनाती और तहलील करती है। मसनूई ज़हानत की मदद से काम करने वाली साइंसी टीम ने डिज़ाइन के मंसूबों को बेहतर बनाने, तजर्बात की नकल करने और तस्दीक करने और नामालूम ढांचों को पेश करने में कामयाबियां हासिल की हैं। उन्हें उम्मीद है कि मसनूई ज़हानत का इंज़माम वसी तर तहकीकी शोबों में फैलेगा, जिंदगियों को तब्दील करेगा और साइंसी तरक्की को आगे बढ़ाएगा। चीन में बुजुर्गों की देखभाल और नैनी की खिदमात की बढ़ती हुई तलब रोजगार के मौके पैदा कर रही है। जनान शहर में कुछ कम्युनिटीज तिब्बी अमले का इंतजाम कर रही हैं। ये खिदमात एक बार रोजाना या माहाना बुनियादों पर हासिल की जा सकती हैं। चीन में बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल और नैनी की खिदमात की बढ़ती हुई तलब रोजगार के मौके पैदा कर रही है और नौजवानों को इस तेजी से बढ़ती हुई मार्केट की तरफ राग़िब कर रही है। मुल्क की आबादियाती तब्दीलियों की वजह से बुजुर्गों की देखभाल की ज़रूरियात में तेजी से इजाफा हुआ है। रोज़मर्रा की देखभाल के अलावा बहुत से खानदान अब नर्सिंग, सेहत की देखभाल और इब्तदाई तिब्बी इमदाद जैसी पेशावराना खिदमात की तलाश में हैं। मशरिकी चीन के सूबे शांगदोंग के जीनान शहर में कुछ कम्युनिटीज़ तिब्बी अमले का इंतजाम कर रही हैं, जो उम्र रसीदा अफराद के साथ उनके मेडिकल चेकअप में डॉक्टर से मुलाकात, बिल्स की अदायगी और अद्वियात के हुसूल में उनके साथ रहेगा। ये खिदमात एक बार रोज़ाना या माहाना बुनियादों पर हासिल की जा सकेंगी। इस तरह की खिदमात फराहम करने वाली एक कंपनी के मुताबिक मेडिकल अटेंडेंट, हेल्थ केयर और बाथिंग असिस्टेंट जैसी उभरती हुई मुलाजिमतों के लिए माहाना तलब 600 से 700 अफराद की है, जिसमें एक दिन में तकरीबन 20 लोग दरकार हैं। रवां साल चीन में ड्रैगन का मुबारक साल होने की वजह से बहुत से खानदान नौजायदा बच्चों की तवक्को कर रहे हैं, जिसमें ज़चकी के बाद की देखभाल की खिदमात पेश करने वाली नैनी की मांग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। रवायती तौर पे चाय पीने वाले मुल्क चीन में कॉफ़ी पीने का रुझान फ़रोग पाने लगा। कॉफ़ी पीने का जुनून अब मुल्क के छोटे शहरों में भी फैल रहा है। शुमाल मगरबी सूबे अनहोई में वाक़े ताइही काउंटी इसका वाज़ेह सबूत है। रिवायती तौर पर चाय पीने वाले मुल्क चीन में कॉफ़ी पीने का रुझान छोटे शहरों और काउंटीज़ में भी फैल चुका है। अगरचे शंघाई को कॉफ़ी शॉप्स की वजह से अक्सर कॉफ़ी का आलमी दारुल हुकूमत कहा जाता है, लेकिन कॉफ़ी का जुनून अब मुल्क के छोटे शहरों में भी फैल रहा है। शिमाल मगरबी सूबे अनहुई में वाक़े ताही काउंटी इसका वाज़ेह सबूत है। ताही के वस्ती इलाके में एक छोटी सी सड़क के साथ कई कॉफ़ी शॉप्स हैं। मुख्तलिफ काउंटीज़ और छोटे शहरों में कॉफ़ी का कारोबार तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जिसकी हालिया मिसाल ताही में एक बैनुल अक़वामी कॉफ़ी ब्रांड की आमद है। इस आलमी ब्रांड का कहना है कि गुज़श्ता 15 महीनों में उसने जिन नए शहरों में कॉफ़ी शॉप्स खोली हैं, उनमें 70% से ज़्यादा को छोटे शहर समझा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में काउंटी मार्केट्स में फ़ी कस कॉफ़ी की खपत की शरह पहले दर्जे के शहरों के मुकाबले में 26% ज़्यादा थी। किकिहार शहर में मवेशी मंडी शुमाल मशरकी चीन में मवेशियों की तिजारत की सबसे बड़ी मार्केट है। मवेशी मंडी ग्राहकों को राग़िब करते हुए मुकामी मेशत को फ़रोग दे रही है। 25 फरवरी को खोली गई मार्केट का तिजारती हुजम 50 मिलियन युआन से तजावुज़ कर गया। चीन के सूबे हेलोंगजियांग के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर ककीहार में वाक़े मवेशी मंडी शिमाल मशरिकी चीन में मवेशियों की तिजारत की सबसे बड़ी मार्केट है, जो मुल्क भर में मवेशी पालने वालों और ग्राहकों को राग़िब करते हुए मकामी मईशत को फ़रोग़ दे रही है और लोगों के जरिए माश को बेहतर बना रही है। मार्केट रवां साल 25 फरवरी को खोली गई थी और इस दिन इसका तिजारती हजम 50 मिलियन युआन यानी 6.9 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद से तजावुज़ कर गया था। तवक्को है कि 2024 में इसका तिजारती हजम 4 अरब युआन यानी 550 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद से तजावुज़ कर जाएगा। गाय के गोश्त की खपत में इजाफा हालिया बरसों में इस इलाके के रिहायशियों की आमदनी में इजाफे का सबब बना है। काउंटी के नायब सरबराह का कहना है कि तकरीबन 1000 किसान मवेशियों से मुताल्लिक रोजगार में मसरूफ हैं, जिनकी औसत घरेलू आमदनी 50,000 युआन से ज्यादा है।
ہیسی کوریڈور میں صحرائی ٹیلوں کے استحکام اور شجرکاری کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ ہیسی کوریڈور گوبی اور قلیان پہاڑوں کے درمیان زمین کی ایک تنگ پٹی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ صوبے میں اس سال 17,300 ہیکٹر سے زیادہ جنگلات لگائے جائیں گے۔ چین کے شمال مغربی صوبے گانسو میں چشمے کے ساتھ ہیسی کوریڈور میں صحرائی ٹیلوں کے استحکام اور شجرکاری کو مضبوط بنایا جا رہا ہے، جو گوبی اور قلیان پہاڑوں کے درمیان زمین کی ایک تنگ پٹی ہے جو اکثر ریت سے متاثر ہوتی ہے۔ ووبی شہر میں 118 یونٹوں کے کل 6,817 عہدیداروں اور ملازمین نے صحرائے ٹینگر کے مرکز میں ریگستان کنٹرول سرگرمی میں حصہ لیا، جو ہیکسی کوریڈور کے مشرقی سرے پر واقع ہے۔ انہوں نے ہوا سے آنے والی ریت کے کنٹرول کی کوشش میں صحرا میں چیکر بورڈ تیار کرنے کے لیے زرعی فضلے، گندم اور چاول کے بھوسے کا استعمال کیا۔ مقامی حکومت کے مطابق صوبے میں اس سال 2.6 ملین مو یعنی تقریباً 17,300 ہیکٹر سے زیادہ جنگلات لگائے جائیں گے اور 2.85 ملین مو یعنی 90,000 ہیکٹر سے زیادہ ویران زمین کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ چین کا سنکیانگ ویگور خود اختیاری علاقہ اپنی 18 سرحدی گزرگاہوں کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بین الاقوامی تجارت کے لیے سنگل ونڈو کے قیام کی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں۔ چین کا سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقہ اپنی 18 سرحدی گزرگاہوں کی نقل و حمل کی صلاحیت اور کلیئرنس کی کارکردگی کو بہتر بنانے، سمارٹ پورٹ پائلٹ منصوبوں کو بڑھانے اور گزرگاہوں کے رابطے کو فروغ دینے میں بین الاقوامی تجارت کے لیے سنگل ونڈو کے قیام میں تیزی لانے کے لیے اہم کوششیں کر رہا ہے۔ 18 گزرگاہوں کے بیرونی ممالک کے لیے کھولے جانے کے ساتھ سنکیانگ ان گیٹ ویز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نقل و حمل کے نیٹ ورک اور ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ چین اور کرغزستان کی سرحد سے متصل گزرگاہ پر P2P نظام سے غیر ملکی سامان جیسے خام لوہے، کوئلے اور خشک میوجات سے لدے ٹرک چینی مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ کپڑے، جوتے، روزمرہ کی ضروری اشیاء، آٹو موبائل سمیت چینی اجناس عالمی دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ الاشنکو گزرگاہ نے چین یورپ ریلوے ایکسپریس میں اپنے کردار میں اضافہ کیا ہے، جہاں 115 لائنیں 200 سے زیادہ اقسام کی اجناس کی نقل و حمل انجام دیتی ہیں۔ کنٹینرز کے تبادلے کے لیے بڑے انڈور اسٹوریج کی سہولیات، 5 ملین ٹن بلک اناج کے لیے مخصوص لائنیں اور برانڈز 1 ملین ٹن اناج اور تیل ذخیرہ کر سکتے ہیں اور کلیئرنس کی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بناتے ہیں۔ گزرگاہوں کے فوائد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد اناج کے لیے ایک جدید لاجسٹک مرکز کی ترقی کو تیز کر رہے ہیں اور خوراک کی تجارت میں سرحدی ممالک کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، جن میں 15 معروف غیر ملکی فوڈ اور آئل پروسیسنگ کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے لیے راغب کیا گیا ہے۔ چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیاری علاقے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھنے لگا۔ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے اسمارٹ اور ڈیجیٹل طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ چپ ٹیکنالوجی اور بگ ڈیٹا پلیٹ فارمز کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے نے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے اسمارٹ اور ڈیجیٹل طریقے اپنائے ہیں، جس سے روایتی صنعت کی اعلیٰ معیار کی ترقی میں تیزی آئی ہے۔ اس وقت سنکیانگ میں 70 لاکھ سے زائد مویشیوں کو موسمی چراگاہوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اندرون منگولیا کے علاقے میں بھیڑوں نے نئے بنائے گئے کوٹ پہن رکھے ہیں۔ یہ کوٹ اعلیٰ کثافت والے پولیتھین مواد سے بنے ہوتے ہیں، جو بھیڑ کے جسمانی سطح کے درجہ حرارت کو ارد گرد کے درجہ حرارت کے مقابلے میں 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا سکتے ہیں، جنہیں واٹر پروف، ونڈ پروف اور سانس لینے کے قابل بنایا گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں سنکیانگ نے مویشی پروری کی صنعت میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری میں اضافے اور تکنیکی جدت طرازی کو فروغ دینا جاری رکھا ہے، اور اس سال چپ ٹیکنالوجی اور بگ ڈیٹا پلیٹ فارمز کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے اور انہیں مویشیوں کی منتقلی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹیکنالوجیز کی مدد کی بدولت 2023 میں سنکیانگ میں بھیڑ کی صنعت کی مجموعی پیداوار کی قیمت تقریباً 44 بلین یوان یعنی تقریباً 6.77 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 10% زیادہ ہے۔ موسم بہار میں مختلف علاقوں کے حسن اور پھولوں کے خوشنما رنگوں میں اضافہ ہو گیا۔ صوبے جیانگسو میں واقع لیانون گونگ شہر کے پہاڑ چیری بلاسم کے پھولوں سے ڈھک گئے۔ درختوں کو مکمل طور پہ کھلتے ہوئے دیکھ کر گلابی بادلوں کا گمان ہوتا ہے۔ جیسے جیسے موسم بہار کی ہوائیں چل رہی ہیں، چین کے مختلف علاقوں کا حسن پھولوں کے خوشنما رنگوں سے بڑھ گیا ہے۔ چین کے مشرقی صوبے جیانگسو میں واقع لیانونگانگ شہر کے پہاڑ چیری بلاسم کے پھولوں کی نرم گلابی چادر میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ دور سے 20,000 سے زیادہ ان درختوں کو مکمل طور پر کھلتے دیکھ کر گلابی بادلوں کا گمان ہوتا ہے۔
قریب آتے ہوئے سیاحوں کو ان شاندار پھولوں کی سحر انگیز خوشبو خوش آمدید کہتی ہے۔ اسی طرح جنوب مشرقی چین کے صوبے جیانگسی میں واقع ہوایون ویلی میں داخل ہونے والے مسافروں کو پہاڑیوں اور قدیم جھیل کے ارد گرد چیری بلاسم کے پھولوں کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان درختوں کی 30 سے زائد اقسام اور تقریباً 1 لاکھ کی تعداد کے ساتھ یہ خوبصورت علاقہ 1 ماہ تک سیاحوں کو پرلطف منظر پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جنوب مغربی صوبے سیچوان میں واقع یونگی گاؤں میں ریپ سیڈ کے پھولوں کی وسعت دریائے ایمی کے کنارے دیہی علاقوں کو شاندار پیلے رنگ کی چادر پہنا دیتی ہے۔ یہ دل فریب علاقہ مقامی لوگوں اور سیاحوں دونوں کے لیے یکساں طور پر ایک پسندیدہ مقام بن گیا ہے، جو اپنے کیمرے کے لینس کے ذریعے قدرت کے سنہری قالینوں کی کشش کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے پاکستان کے 84ویں قومی دن کے موقع پر استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں متعدد سینئر چینی حکام، سفارتکاروں، پاکستانی کمیونٹی کے ارکان، دانشوروں اور میڈیا کے سرکردہ افراد نے شرکت کی۔ چین کے نائب وزیر خارجہ سن وی ڈونگ استقبالیہ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے پاکستان کے 84ویں قومی دن کے موقع پر ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں متعدد سینئر چینی حکام، سفارتکاروں، پاکستانی کمیونٹی کے ارکان، چین کی سرکاری اور نجی کمپنیوں کے نمائندوں، دانشوروں اور میڈیا کے سرکردہ افراد نے شرکت کی۔ چین کے نائب وزیر خارجہ سن وی ڈونگ نے استقبالیہ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے دونوں ممالک کی مضبوط شراکت داری کا ذکر کیا، جسے دونوں ممالک کی کئی نسلوں نے پروان چڑھایا ہے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ سن وی ڈونگ نے ملک کی خوشحالی، خود مختاری کو برقرار رکھنے اور قومی وقار کے دفاع کے لیے پاکستان کی حکومتوں اور اس کے عوام کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے مشترکہ خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے، ترقی پذیر ممالک کے جائز حقوق اور مفادات کے دفاع اور بین الاقوامی عدل و انصاف کو فروغ دینے کے لیے چین اور پاکستان کے درمیان تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں نئی حکومت کے لیے چین کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا اور نئے دور میں چین پاکستان ہم نصیب معاشرے کی تشکیل کا عمل تیز کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے حوالے سے چین کے عزم کا اعادہ کیا۔ تقریب کا آغاز پاکستان اور چین کے قومی ترانوں سے ہوا۔ پاکستان امبیسی کالج بیجنگ کے طلبہ و طالبات کی جانب سے پیش کیے جانے والے ملی نغموں نے حاضرین کو بھی گنگنانے پر مجبور کر دیا۔ تقریب میں موجود پاکستانی کمیونٹی نے وطن سے والہانہ محبت کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ السلام علیکم، میری طرف سے تمام پاکستان بہن بھائیوں کو 23 مارچ کی دلی مبارک۔ پاکستان میں آپ سب کو یوم پاکستان کی بھرپور مبارک۔ یہاں بیجنگ میں پاکستانی ایمبیسی نے ایک شاندار تقریب کی ہے، جدھر چائنیز اور باقی تمام ممالک کے بہت زیادہ ایکسپرٹس، ڈپلومیٹس، ریسرچر سب موجود ہیں، اور آج کے چیف گیسٹ سن وی ڈونگ جو پاکستان میں بھی ایمبیسڈر رہ چکے ہیں اور پاکستان کے ایک بہت اچھے دوست ہیں۔ تمام اہل پاکستان کو یوم قرارداد پاکستان 23 مارچ بہت بہت مبارک ہو۔ میں یہاں بیجنگ میں پچھلے 20 سال سے مقیم ہوں، اور ہر سال جو ہے بڑے جوش و خروش سے ہم یوم پاکستان مناتے ہیں۔ یہاں پاکستانی بچوں نے یہاں ملی نغمے گائے، لوگ تھے وہ بڑے ہی اس سے متاثر ہوئے، اس سے خوش ہوئے۔ استقبالیہ میں لگائی گئی پاکستانی ثقافتی مصنوعات کی نمائش نے شرکاء کو پاکستان کو قریب سے جاننے کا موقع فراہم کیا۔ مہمان خصوصی اور سفیر پاکستان نے پاکستان کے 84ویں قومی دن کی مناسبت سے کیک کاٹا۔ چین میں موبائل پیمنٹ نہایت اہمیت کی حامل بن چکی ہے۔ اس حوالے سے چین کی جانب سے کئی اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ موبائل پیمنٹ کے بارے میں مزید جانتے ہیں 100 سیکنڈز میں۔
सेकंड में चीन से जुड़े हॉट टॉपिक पर एक नज़र डालते हैं। आज हम बात करेंगे चीन में मोबाइल पेमेंट की। खास तौर पर गैर मुल्कियों के लिए, अगर आप काम या सफ़र के लिए चीन आते हैं तो क्या आपके पास मोबाइल पेमेंट की सहूलत मौजूद है? अगर नहीं तो सफ़र कैसे करेंगे और दीगर चीज़ें कैसे खरीदेंगे? चीन ने इस हवाले से कौन से नए इक़दाम मुतारिफ करवाए हैं, आइए हम एक साथ जानते हैं। चीन में आपको नकद करेंसी की ज़रूरत नहीं, बस आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन लाजमी है। इसलिए गैर मुल्की दोस्तों के लिए ज़रूरी है कि वो चीन के मोबाइल पेमेंट निज़ाम के साथ अपने बैंक कार्ड्स को मुंसलिक करें। चीन पहुंचने के बाद यह सबसे अहम बात है। गैर मुल्कियों के लिए मोबाइल पेमेंट की सहूलत में बेहतरी के लिए अली पे और वी चैट के अप्लाई के अमल, बैंक कार्ड्स बाइंडिंग की सहूलत को आसान और शनाख्त की तौसीक के अमल को भी आसान बनाया गया है। चीन आने वाले गैर मुल्कियों के लिए मोबाइल अदायगियों के जरिए सिंगल ट्रांजैक्शन की हद को 1000 अमरीकी डॉलर से 5000 अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने और सालाना मजमूई लेन देन की हद को 10,000 अमरीकी डॉलर से 50,000 अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। चीन में गैर मुल्कियों के लिए पेमेंट के मसले को हल करने से गैर मुल्कियों के साथ चीन के दोस्ताना रवैये और खिदमात के अलापन की अक्कासी होती है। मुझे भी उम्मीद है कि मज़ीद पाकिस्तानी दोस्त चीन आएंगे और चीन में मौजूद सहूलियात और तेज़ रफ्तार मोबाइल पेमेंट का तजर्बा करेंगे। आलमी इदारों का कहना है कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए कारोबारी मौक़ों और माहौल में बेहतरी आई है। माहिरीन इसकी वजह इंटरनेट के ज़रिए नौकरी और कारोबार को करार देते हैं। सीपैक के पहले मरहले की तकमील के बाद ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौक़ों में मज़ीद इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में ख़वातीन के लिए कारोबार के मौक़ों और माहौल में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है, ये कहना है वर्ल्ड बैंक समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों का। माहिरीन इसकी वजूहात में ख़वातीन में इंटरनेट के ज़रिए जॉब्स और बिजनेसेस के रुझान में इजाफे, नए स्किल्स सीखना, नए कारोबारी आइडियाज़ और सीपैक जैसे मंसूबों के ज़रिए मुल्क में बराह रास्त आने वाली बैरूनी सरमायाकारी की वजह से पैदा होने वाले मौक़ों को करार देते हैं। मुनीज़े माजिद इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ एक प्राइवेट फर्म की सरबराह भी हैं। Lot of work and lot of women from day one in Pakistan have been working. तो बहुत सारी पॉलिटिशियंस तो आपको वैसे नज़र आती हैं कि मीडिया पॉलिटिक्स में आती हैं, जो कि आपके सामने होती हैं, जो आपकी मीडिया इंडस्ट्री में हैं वो आपके सामने होती हैं। बट देयर आर बिजनेस वुमेन हु आर नॉट ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट। लाइक आप इंग्लिश बिस्किट की देखें तो उनकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव लेडी, अ वेरी फाइन लेडी एंड वर्किंग। अब नई जो एज में बच्चियां आ रही हैं वो हर फील्ड में, तो वो अपने फोर फादर्स के जनरेशन्स और उनके टेक्सटाइल बिजनेस को ज्वाइन कर रही हैं, उनके डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स में जा रही हैं, वीविंग इंडस्ट्री में आ रही हैं। इस्लामाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बानी सदर समीना फाजिल चीन के दौरे कर चुकी हैं। वो दोनों मुमालिक के दरमियान कारोबार से वाबस्ता ख़वातीन के लिए तरक्की के बेशुमार मौक़े देखती हैं। पाकिस्तान के जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 60% जो रूरल वुमेन है माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही हैं। तो सिर्फ जो कमी है वो इस बात की है कि उनकी चाइना तक रसाई नहीं है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट लेवल पे हम इंडिविजुअल तो कोशिश करते रहते हैं कि हम ख़वातीन को लेके भी जाते हैं उनके बिज़नेस की प्रमोशन के लिए, तो अगर हमें सही मानों में हम ट्रेड के अंदर ख़वातीन को फैसिलिटेट करना शुरू कर दें और जो चाइना की डिमांड है, जो वहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और इजीली हमारी ख़वातीन वो बना सकती हैं, तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी सिर्फ हैंडमेड प्रोडक्ट के अंदर। राबेल पीरज़ादा पाकिस्तान में ब्लाइंड ख़वातीन को यकसा मौक़ों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए काम करने वाली तंजीम की सरबराह हैं। वो कहती हैं कि ब्लाइंड ख़वातीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं, जिसमें उन्हें कामयाबियाँ भी हासिल हो रही हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ उन लोगों की बात नहीं करूँगी जो देख सकते हैं, मैं उन लोगों की भी बात करूँगी जो हमारे जैसे हैं, जो देख नहीं सकते। ठीक है, हमारी इस टाइम पे बहुत सारी नाबीना बच्चियाँ जो हैं
अपने कारोबार करती हैं, ठीक है। अपने घर के अंदर जो हैं उन्होंने टक शॉप बनाई है, उनके कैफ़े बने हुए हैं। बहुत सारी बच्चियाँ अपने घर में पार्लर चला रही हैं जो देख नहीं सकती। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो क्रोशिया का काम करती हैं। तो मेरे ख्याल में कि हर वो फील्ड, और जितना हम पिछले 5-7 सालों से काम कर रहे हैं, हम बेसिकली काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, यानी कि छोटे छोटे कारोबार जो किया जा सकता है। तो आज तक जो सबसे कामयाब चीज़ रही है वो है खाना, क्योंकि फूड एक ऐसी चीज़ है परी जो पूरा साल चलती है। और दूसरी इसमें सबसे अहम चीज़ मैंने देखी है, दैट इज़ क्रोशिया, जो हैंड नीटिंग काम है जिसको आप हाथ से करते हैं। ये बहुत सारे ऐसे दस्तकारी के काम है जिसमें कपड़ों पे पेंटिंग की जाती है। उसमें भी जितना क्रिएटिविटी चाहिए होती है, क्योंकि कपड़ा भी एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर पूरा साल आप उसको यूज़ करते हैं। तो आई थिंक दे बोथ आर मोस्ट रीडिंग के इनको कर सकते हैं। और वैसे करने को तो सब कुछ किया जा सकता है, इसमें तो कुछ भी मसला नहीं। ये तमाम खवातीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सीपैक के पहले मरहले की तकमील के बाद इस अजीम मंसूबे में मौजूद खवातीन के लिए मौके निखर कर सामने आ गए हैं। सीपैक जिस वक्त हमारे पास मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, ऑब्वियसली हमारा एक रूट बनता है, सब कुछ होता है, हमारा गवादर भी डेवलप होता है और बाकी सारी चीज़ें भी डेवलप होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स तो आपके पास बाहर से आती हैं, और जिस वक्त डेवलपमेंट होती है तो वेदर इट इज़ इन टूरिज़म, वेदर इट इज़ इन दी इंडस्ट्री और वॉट एवर, आप देखें कि क्या क्या आ रहा है। मतलब लाइक इवन आपका सोलर आ रहा है, आपकी एनर्जीज आ रही हैं, आपकी एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग। और वो जहाँ पे जिस वक्त हमारे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक विद चाइना वट एवर दे आर कमिंग। अब चाइना के साथ मैं आपको ये कहूँगी कि देखें, जैसे हमारे ना स्टूडेंट्स के एक्सचेंज हो रहे हैं चाइना के साथ, ठीक है। अब स्टूडेंट के एक्सचेंज हो रहे हैं तो उनके लोग हमारे लर्न कर रहे हैं लैंग्वेजेस, हमारे लोग उनके लैंग्वेजेस लर्न कर रहे हैं। ये पहले नहीं हुआ था। ये मे बी इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सीपैक दैट पीपल अंडरस्टैंड कि जिस वक्त चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आएंगे यहाँ पे, एंड वो जो आपकी कम्युनिकेशन का गैप है वो पूरा होना चाहिए। सो yes, you can say this is one area where women can actually come in. मैं समझती हूँ कि सीपैक का भी बहुत अच्छा जो है वो एक मंसूबा है और इस पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। और अब जब यहाँ पे हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है, तो मैंने पहले भी एक जो है वो सजेशन के ऊपर जो है दी है गवर्नमेंट को भी और मुख्तलिफ इदारों को भी, कि अगर ये जो हमारे सीपैक के रूट्स बन रहे हैं और यहाँ पे साइड एरिया में जो रेस्ट एरिया बन रहे हैं लोगों के खाने पीने के लिए, स्मॉल होटल्स बन रहे हैं, तो अगर वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की जो है शॉप्स बना दी जाएँ, जैसा कि आप दुनिया में भी देखा कि इसी तरीके से मैं ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ पे इस तरह चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, तो उससे भी जो है हमारे बिज़नेस को बूस्ट मिलेगा कि जो लोग ट्रैवल कर रहे होंगे तो उनकी डायरेक्ट उन प्रोडक्ट के साथ एक एक्सेस हो जाएगी। तो इस तरीके से भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी ख़वातीन के लिए। सीपैक जैसा एक मंसूबा आया है और ये आई थिंक इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू ऑल मतलब वुमेन, चाहे वो डिफरेंटली एबल हैं या वो साइटेड हैं। और आप यकीन करें कि अगर सीपैक के साथ साथ जो है वहाँ पे वो अपने कैफ़ेज़ बना सकती हैं, अपने फैशन डिज़ाइनिंग की चीज़ें कर सकती हैं, स्केचिंग कर सकती हैं, इसके अलावा और बहुत सारी खूबसूरत हैंडमेड चीज़ें बना सकती हैं। मेहनत, लगन और कामयाब नताइज रखने वाली ये पाकिस्तानी खवातीन मस्बत रवैयों की तरवीज और बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म हैं। अगर हम अपनी खवातीन को रसाई दें चाइना तक, तो मैं समझती हूँ कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है और इतना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट में चीज़ों को लेके जा सकते हैं। विमेन कहीं से भी लैग नहीं करती। एंड मैं ये एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बी योर सेल्फ। आप अपनी कंफर्ट लेवल में रह के काम करें, आप अपनी स्पेस को खुद मेंटेन करें, आपकी रिस्पेक्ट खुद आप करवाएंगे और अपना काम अपना करते जाएंगे तो आपका काम आपकी रिस्पेक्ट करवाएगा। आई थिंक सीपैक जो है वो एक बेस्ट मतलब एक गोल्डन चांस है टू ऑल पाकिस्तानी वुमेन, या बल्कि मैं ये कहूँगी कि सबके लिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चीन में फर्नीचर और होम अप्लायंसेस के हवाले से एक्सपो का एहतमाम हुआ। एक्सपो में फर्नीचर के हज़ारों ब्रांड्स ने अपनी मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की। मुख्तलिफ इक़साम के फर्नीचर और होम अप्लायंसेस की वसी रेंज तवज्जो का मरकज़ बन गई। हाईटेक मसनूआत में अवाम ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त और मैं हूँ रिजवान अब्बासी। हमारे साथ जिम को एक्सप्लोर करें और आज हमारा स्टॉप है द फर्नीचर और होम अप्लायंस एक्सपो। अच्छा, ये एक्सपो मेरे लिए ज़्यादा दिलचस्पी का बायस इसलिए है क्योंकि मुझे फर्नीचर चाहिए था अपने घर के लिए और मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी वैरायटी मुझे मिल जाएगी। जी बिल्कुल, तो क्यों इंतज़ार है, चले प्लीज़ चलिए। अच्छा इफ़त साहबा, मैंने सुना है कि यहाँ पे फर्नीचर के हज़ारों ब्रांड्स आए हुए हैं और उनके पास मुख्तलिफ तरह के फर्नीचर्स की एक बड़ी वसी रेंज है। जी बिल्कुल, और यहाँ न सिर्फ बहुत से ज़्यादा रवायती फर्नीचर बल्कि स्मार्ट फर्नीचर भी मौजूद है। स्मार्ट फर्नीचर, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, चल के देखते हैं। फर्नीचर और होम अप्लायंस एक्सपो हर साल जिन के कई शहरों में मुनाकिद होती है। इस नुमाइश में हजारों मैन्युफैक्चरर्स शिरकत कर रहे हैं और लाखों सारिफिन उसे देखने आए हैं। यहाँ न सिर्फ रिहायशी फर्नीचर है बल्कि ऑफिस फर्नीचर, स्कूल का सामान और यहाँ तक के दिबी देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल के लिए मौजूद फर्नीचर भी मौजूद है। एक्सपो में आप तमाम ज़रूरियात को एक स्टॉप में पूरा कर सकते हैं। जनाब आप देखें, ये तो चीनी रवायती स्टाइल की फर्नीचर है जी और काफ़ी खूबसूरत। अच्छा, मुझे ये वाला बड़ा पसंद आया। हाँ, हमारे यहाँ तो टेबल आपने देखा होगा, जैसे टेबल सामने होता है ना, तो आपके यहाँ पे बैठ के और ये बड़ा अच्छा आप एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड, मुझे ये पसंद आया जी। और इसका चीनी नाम है लोहान और हम इससे तो चाय भी पी सकते हैं ना। या अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं इसको ख़रीद के पाकिस्तान वापस भेज दूँ और ये मुझे कुछ मदद कर सकें इसमें? जी बिल्कुल, और आप देखें इस फर्नीचर एक्सपो में न सिर्फ जो चीनी कस्टमर्स मौजूद हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी कस्टमर्स भी हैं और वो यहाँ चीज़ ख़रीद करके अपने मुल्क में भी भेजते हैं। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही कि एक तो एक ही छत तले आपको इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है और दूसरा ये कि आपको कोई चीज़ अगर पसंद आ गई, आप अगर ताजर हैं या फिर आपने अपने घर के लिए कोई चीज़ ख़रीदनी है तो आप उसको अपने मुल्क वापस भेज सकते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। या जी बिल्कुल। जी जनाब, अगर आप एक मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो एक बेहतर ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है वो ये मसाजर चेयर है जी। बहुत ही अच्छी ईजाद, स्मार्ट वर्क करती है, आपके यहाँ से लेकर पाँव के टोस तक हर जगह का आपको मसाज करेगी। और बेहतर बात यह है कि इस पे एक स्मार्ट पैनल भी मौजूद है और मुख्तलिफ फंक्शंस आप इसके यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। सर प्लीज, सर आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? वाओ, अच्छा। ओह कूल। अच्छा, ये तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो गया? दिस रिक्लाइंस फॉरवर्ड। अच्छा, गुड। कैसा लगा? कंफर्टेबल है जी। हाँ, जब कल में हम टीवी देखते हैं तो न सिर्फ जो बैठ सकते हैं बल्कि लाई डाउन भी हो सकते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि आप इसको स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। ये आप इसको फोल्ड करके नॉर्मली यूज़ करें और फिर अगर आपका, जैसे आपने कहा, टेलीविज़न देखने का मूड हो या फिर आराम करने का तो इसको आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। गुड। दुनिया के सबसे बड़े फर्नीचर बनाने वाले और बरामद करने वाले मुल्क के तौर पर जिंग आलमी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने का हकदार है। सालाना फर्नीचर एक्सपो में न सिर्फ चीनी ब्रांड्स बल्कि बहुत सारे गैर मुल्की ब्रांड्स की नुमाइश भी होती है। इसके साथ साथ हमें दुनिया भर से ऑर्डर्स भी मौसूल होते हैं। फर्नीचर एक्सपो आर्मी खरीदो फरोख्त के लिए एक सर्विस प्लेटफॉर्म भी है।
जनाब आप देखें ये फ्रिज है तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है। हम देखें ये 2 डोर्स हैं और इनमें ये गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ और यहाँ जो चीज़ें हैं बहुत देर तक फ्रेश रख सकते हैं। जी और ऐसा ही है। जी इसके अलावा एक और फंक्शन एक खूबी ये है कि ये काफ़ी स्मार्ट है। ये AI टेक्नोलॉजी से अपने जो फ़ोन पर एप्लीकेशन से भी लिंक होता है। अगर आप घर में नहीं है तो दूर दराज से ये कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ तो टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। जनाब आप देखें ये एक ओवन है लेकिन मुख्तलिफ फंक्शंस के साथ है। स्टीमिंग भी है, फ्राइंग भी है और जो बेकिंग भी है और इसमें भी 50+ रेसिपीज भी मौजूद हैं। सिर्फ एक पैटर्न से ये खुद बहुत कुक कर सकते हैं। और एक खूबी ये है तो फ़ोन पर ऐप से लिंक हो सकते हैं तो दूर दराज से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह की जो स्मार्ट एप्लीकेशंस हैं इनके आने से एक तो चीज़ ये हो गई है कि ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा इफ़ा साहबा, ये बड़ी एक स्मार्ट सी अप्लायंस है जी किचन एरिया की। अक्सर ये होता है कि आपके हाथ ना कुकिंग करते हुए ज़रा ग्रीसी होता है, तो आप ये कर सकते हैं, ये हुड है जी इस कुकिंग रेंज का और आप सिर्फ अपने हाथों के इशारे से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, और फिर आपने एग्जॉस्ट चलाना है, उसके लिए भी आपको कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक दफ़ा इसको यूँ किया तो ये एग्जॉस्ट भी इसका ये देखें यस 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 यस। सो ये एक बड़ी स्मार्ट एप्लीकेशन। और इसके साथ साथ कहा यह जाता है कि ये जो हुड है वैसे तो नॉर्मली आपको क्लीनिंग प्रोसेस आपका खुद से ही आपको करना होता है, लेकिन ये इटसेल्फ अपने आप को सेल्फ क्लीनिंग का इसका एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी कोई तरद्दुद नहीं करना होता। आज की टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगियाँ हमारी बहुत सारी जो है वो आसान कर दी है। अच्छा, अब आपने इसको क्लोज़ भी करना है, इसको ऑफ़ करना है, एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने यूँ किया था। आप इसको यूँ कीजिए इस तरह से और ये कोशिश करना या प्लीज़ ओह यस इस तरह तो क्लोज होगा। अच्छा, आपको बिल्कुल कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है। सब काफ़ी एक स्मार्ट सी एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है जी। टेक्नोलॉजी की मुसलसल तरक्की के साथ फर्नीचर और होम अप्लायंस ज़्यादा से ज़्यादा ज़हीन हो रहे हैं। स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, खुदकार कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंस, रिमोट कंट्रोल और निगरानी, तवानाई की बचत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए ज़िंदगी को ज़्यादा आसान और आरामदा बनाती है। अच्छा इफ़ा साहिबा, आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा और हमने देखा कि ये जो फर्नीचर है या मुख्तलिफ जो अप्लाइंसेस हैं, मसनूआत हैं, वो स्मार्ट होती जा रही हैं और उसी वजह से हमारा जो ज़िंदगी का सारा निज़ाम है, सर्कल है, वो काफ़ी आसान हो चुका है। जी बिल्कुल, और ऐसे फर्नीचर एक्सपो से हम न सिर्फ तो मुख्तलिफ वैराइटीज़ देख सकते हैं बल्कि तो ख़रीद करके अपने घर और अपने मुल्क में भी पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी फर्नीचर एक्सपो क्या आप पसंद करते हैं? चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।